Good evening, everyone. So our today's topic is quadratic equation. So quadratic equation. So what is a quadratic equation? A quadratic equation is a second degree equation. The general general form of the quadratic equation. Quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c all are real numbers and a not be 0 means a 0 नहीं हो सकता. For example, 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. So now we talk about root of quadratic equations. Roots of quadratic equations. So the value of x which satisfy the quadratic equation are called the roots of quadratic equation. Roots are also called means zeros and solutions also. Solutions of a quadratic equations. Now we talk about solving methods of a quadratic equations. So solving quadratic equations. A first है using quadratic formula और we called इसे श्रीधराचार्य. हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं. इसको श्रीधराचार्य formula. If ax square plus bx plus c is equal to 0 is the given quadratic equation, then the roots are given by this formula. X is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. And our second method of solving quadratic equation is factorization.
factorization method. Let ax square plus bx plus c is equal to a of x minus alpha and x minus beta is equal to 0. If equal to 0, then x is equal to alpha and x is equal to beta will satisfy the given equation. So factorizing the equation and equating each to 0 gives the roots of given equation. मीन्स जब हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को जब हम पर्टिकुलरली x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, हम इनको अलग अलग हम इनको 0 के इक्वल करेंगे. सो जब दो वैल्यू आएगी वो उसके इसी इक्वेशन के रूट होंगे. एंड नाउ वी टॉक अबाउट sums and product of roots. Sum and product of root. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to minus of coefficient of x upon coefficient of x square and product of roots alpha beta is equal to c by coefficient of x square. Now we talk about a discriminant of a quadratic equation. So discriminant of quadratic equation. The discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is given by d is equal to discriminant d is equal to b square minus 4ac, and it is also denoted by delta. Now we talk about nature of roots. Nature of roots. The nature of roots
nature of the roots depends on its discriminator. How we talk here, discriminator d is equal to b square minus 4ac. So if d is equal to 0 and d is not equal to 0, if d is equal to 0 means रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल एंड व्हेन डी नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ भी दो कंडीशंस है, व्हेन डी ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन डी लेस देन 0. जब डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड डिफरेंट. और जब d लेस देन 0 है तो क्या होगा, तो होंगे रूट्स होंगे इमेजनरी एंड डिफरेंट तो विषय होंगे ही, वो कॉग्निजेंट होंगे. अब d ग्रेटर देन 0 है तब भी दो कंडीशंस होती है, व्हेन d क्या हो, d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर और d क्या हो, d नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. अब जब d परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, तो रूट्स है रेशनल नंबर्स, रेशनल मीन्स परिमेय. एंड जब d नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या है, रूट्स क्या है, इरेशनल है और मतलब अपरिमेय नंबर होगा वो. और now we write down all the points here we discuss. So our points is first point है, if, अब फर्स्ट है यहाँ पे, ये क्या है, डी अब इफ डी इज इक्वल टू 0 है मीन्स क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल. सेकेंड है, इफ डी ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स होंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 है मीन्स ये, तो रूट्स होंगे रियल एंड डिफरेंट. अब थर्ड क्या है, थर्ड है जब d लेस देन 0 हो, इफ d लेस देन 0 है मीन्स रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी. रूट्स आर इमेजनरी एंड डिफरेंट. इमेजनरी मीन्स काल्पनिक, जो आयोटा में जो संख्या आती है वो वाली. एंड फोर्थ है, इफ, ये वाली कंडीशन, इफ डी क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है एंड डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, डी इज इक्वल टू, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर है मीन्स रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे
परिमेय नंबर मतलब रेशनल नंबर, रेशनल एंड डिफरेंट होंगे। एंड फिफ्थ कंडीशंस क्या होगी? फिफ्थ होगी इफ डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय नंबर, अपरिमेय एंड इरेशनल एंड डिफरेंट obviously we have another one condition if a, b and c all are real number and d less than 0. If all are real number and d less than 0, then roots are imaginary and complex conjugate. Complex conjugate number. For example, एक रूट हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। एंड वी हैव अनदर कंडीशंस इफ ए, बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर, नहीं ऑल आर परिमेय रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है एंड डी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, बट डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स क्या होंगे? देन रूट्स आर इरेशनल conjugate numbers. For example, if p plus root q, then दूसरा जो रूट होगा वो होगा p माइनस रूट q, क्योंकि ये कॉन्जुगेट्स में आते हैं। एंड now we solve some questions. So question number one क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड a, b, c एंड d ऑल आर रियल नंबर्स। मतलब मीन्स ऑल सब रियल है, कोई इमेजिनरी नहीं है। सो विच ऑप्शन विल बी ट्रू? तो फर्स्ट ऑप्शन है देर आर थ्री रियल रूट्स, बी होगा 3 इमेजिनरी रूट्स, सी होगा 1 रियल एंड, यहाँ एंड ना की और, एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। और डी ऑप्शन होगा मिनिमम 1 रियल रूट। सो अपने पास इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन अपने पास इक्वेशन क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास भी इक्वेशन है, तो इसमें क्या है? इसको अपने ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए x प्लस अल्फा प्लस ax स्क्वायर प्लस px प्लस q, ये हो सकता है। सो यहाँ दो कंडीशन है। देखिए ये तो इसका तो रियल ही होगा क्योंकि ये तो सिंगल है, इस पर तो पावर सिंगल है,
तो ये जो रूट होगा ये तो रियल होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो द्विघात समीकरण का हम कह नहीं सकते, बिकॉज इसमें हमने पीछे डिस्कस किया, इसमें देखिए ये हो सकता है, रियल एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकता है, इरेशनल भी नंबर भी इसके हो सकते हैं रूट्स। तो इसके बारे में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं कह सकते, बट एक चीज़ है कि इसका एक रूट वो रियल होगा, तो ये ऑप्शन है जो डी है, मिनिमम वन रियल रूट, तो ये ऑप्शन सही होगा। ओके, नाउ we solve another question, question number 2. Question number 2, if px is equal to ax square plus bx plus c and qx is equal to माइनस का ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c, then रूट्स ऑफ इक्वेशन px इंटू qx इज इक्वल टू 0। मतलब ये दो इक्वेशन है, इनको जो मल्टीप्लाई करें उसके बाद जो 4 पावर ऑफ इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स बताने अपन को। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 4 रियल रूट, बी ऑप्शन क्या है, बी है 4 इमेजनरी रूट, इमेजनरी, एंड सी ऑप्शन है मिनिमम 2 रियल रूट, एंड डी ऑप्शन है 2 रियल एंड 2 इमेजनरी रूट। सो अपने पास दो इक्वेशंस है, सो सॉल्यूशन, अपनी फर्स्ट इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, एंड क्यू एक्स क्या दे रखी है, माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4ac, ऑब्वियस सी बात है। अब इफ हम d1 प्लस d2 को ऐड कर दें तो अपने पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस डी स्क्वायर प्लस 4ac। तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, तो इसका आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अपने पास है d1 प्लस d2 डिस्क्रिमिनेंट, तो अपने पास ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मीन्स ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो अपने पास d1 और d2 क्या हो सकता है, d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या ये भी जीरो ये भी जीरो, तो भी जीरो हो सकता है, या फिर जीरो से तो बड़ा ही होगा। तो अपने पास यहाँ पे कंडीशंस हो सकती है कि एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज कि अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ये जीरो से बड़ा कैसा होगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर अपने पास जब ये पॉजिटिव है, मतलब कि एक तो इनमें से ऐसा हो कि जो पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा हो कि पॉजिटिव हो। तो अगर एक पॉजिटिव हो मिनिमम, तो दो तो रियल रूट आ ही जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब अपन रिलेशंस की बात करते हैं कोएफिशिएंट एंड रूट्स के अंदर। अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स मतलब
गुणांक एवं मूलों में संबंध। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर के और जो रूट्स आते हैं उनके अंदर अपन को चाहिए रिलेशन चाहिए। तो अपना फर्स्ट है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इफ इसके जो रूट्स है वो अल्फ़ा एंड बीटा है ना, देन हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स का जो सम है वो होता है -b/a एंड अल्फ़ा बीटा जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो होता है c/a। अब यही बात हम जब पावर 3 हो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब पावर 2 हो अक्स की, यही जब पावर 3 हो मीन्स इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हो आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा हो, देन क्या होगा, देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इनका जो सम है वो होगा माइनस ऑफ जो हाईएस्ट पावर है मतलब एक्स क्यूब, इससे जस्ट एक पावर कम, तो एक पावर कम क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट अपॉन जो हाईएस्ट पावर है उसका मीन्स एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट ए। अब इनका दो दो का मल्टीप्लाई होगा, इनका टोटल कितना होगा, इनमें सम क्या होगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इनका होगा c/a और जो तीनों का गुणन होगा अल्फ़ा बीटा और गामा ये होगा माइनस का d/a, और ये नेगेटिव है, ये अल्टरनेट चलता है, ओके। एंड नाउ वी टॉक अबाउट पावर 2 के लिए कर ली, पावर 3 के लिए कर ली, अब हम पावर n के लिए ये करते हैं। जब पावर n हो इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन